everybody, and welcome back to another session on Python programming. In the last two sessions, we had introduction to Python. In the first session, we understood what is programming language, where does Python stand in the market, and what are the advantages of Python. That's what we had learned in the first session. In the second session, the most important thing that we learned was how does Python program run. We understood the concept of virtual machine and so on, PVM and so on. And then we saw alternate implementation of Python. Today, I have sent across a mail to you through Zoom, through YouTube. Make sure that you go through that particular video as well. It's just a repetition of what we had done. And in the description of video, you will find all the other implementations of Python that I have not discussed with you. Anybody can learn. The person who created Python himself came from physics background. तो जिसने पाइथन क्रिएट किया वो फिजिक्स के बैकग्राउंड से आ सकता है, तो मैकेनिकल हो या क्या हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. As long as you have ideas, as long as you can think logically, you can write programs and you can provide solutions for your own domain. And another reason, अगर आप Python के साइट पे जाते हो, they said the first motivation for creating this language, as Guido says, the one who created a language, he wanted to provide a language for people who are not from computing background, like doctors, professional engineers, scientists, जिनको प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, खास उन्हीं के लिए पहली बार Python इंट्रोड्यूस किया गया था. So Python is a language initially created for people who are not from programming background, who have idea of their own domain but do not know programming and they want to implement that idea. उन्हीं के लिए ही Python create किया. यानी Python का initial motivation ही था ये language ऐसा क्यों बनाए ताकि non programming लोगों के लिए भी programming आ सके. So forget about anything else. So don't worry, it's a language that anybody can learn. Rather, every language anybody can learn. But then Python is specifically created to address to this issue. Syntax आसान है, सब कुछ आसान है, जल्दी से पढ़ पाओगे. Let's begin with the topic for today. Today's topic for discussion is the fundamental topic that you'll come across in every language. Today we're going to learn about data types in Python. Now, what is data types? Remember, programs are written to carry out some kind of operations. Now the question is, what do they operate upon? Every program operates upon data. Every program, every instruction that you write carries out operation on the data. Now language will tell you what to operate, how to operate, क्या operation करना है आप language के through बताओगे, but operation किस पे करना है data. Now depending on the nature of the data, some operations are allowed, some operations are not allowed. Like suppose if I have a string like Akash, ये word है, अब Akash divided by 2 का result क्या रहेगा? Now is that logical operation Akash divided by 2? No. Yeah, square root of Akash. No, that is incorrect. Word का कभी square root होता है क्या? But at the same time, if I said number is 144 or square root of 144, then I'll get some result. That means आपका जो data है, 144 भी एक data है, आकाश भी एक data है, but दोनों data का nature अलग है. When the nature of the data is different, that means the kind of operations that you're going to carry out on the data will also be different. That means you can perform some arithmetic operation like addition, multiplication, division, subtraction. ये जो सारे operations है, ये आप numeric values पे कर पाओगे. Non-numeric data पे तो ये नहीं कर पाओगे आप operations. So in Python, data or in every computing, data also has a type. So there are different types of data types of data that language can differentiate between. So Python also has an ability to differentiate between different types of data. It can understand a difference between a word Akash and number 144 and a number 4 plus 5j, okay, or 5i, जिसे आप कहते हैं complex number. It can understand the difference between these three types of data. तो उसे मालूम है ये complex number है, ये whole number है, ये real number है, ये string है. It can understand the difference. Now, the more the kind of data that the language can differentiate between, it can provide you specialized operation to be performed on the data. अगर मेरे पास नंबर नेम आकाश है, मैंने कहा आकाश का रियल पार्ट बताइए, अरे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, आकाश का रियल पार्ट कहाँ, या आकाश का न्यूमरेटर बताए ना, आई हैव नंबर 144, उसका डिनोमिनेटर क्या है, तो वी नीड टू हैव अ फ्रैक्शन, वी नीड टू हैव नंबर्स इन डेसिमल फॉर्मेट्स. तो लैंग्वेजेस हैव एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. More the type of data that you can differentiate between, better is the language that you can use for data processing work. Is Python meant for data processing? Python is actually used in variety of areas. Data processing is one of the aspects. Python provides you a lot of high level data structures जिसके through data पे operate करना Python के through becomes very, very easy. So what is the concept of data types and how does Python support data type is what we are discussing right now. So data types in Python is what we are starting. Programming means data processing. The very reason why we write a program is because there is some data on which you have to carry out an operation. If there had been no data, there is no need for you to have a program. The very reason
why the program exists is because there is some data, and on that data we have to carry out some operation. So to carry out the operation, we write programs. So why do you need programs? Because there is some data on which you want to carry out some operation. So if there is no data, we don't need programs. If there is no data, we don't need programs. Data in Python program is represented by objects. Now don't worry about this term objects so early, accept it. There are few terminologies that I'll be explaining in detail later, but it's an object. Like this is one object, that's a glass. Then this is one object, that's a mouse. Okay, these are objects. Now what is an object? Anything that is identifiable is an object. Anything that is identifiable is an object. Can you identify this thing that is there right now? Anybody can identify what is this? Pen, sir. It's a pen. It's a pen. Smart enough, huh? How did you identify it's a pen? And what is this? Keyboard. It's a keyboard. You are smart, huh? ये दोनों चीज़ identify किए. कैसे identify किया आपने? Don't tell me देख के identify किए. कुछ डिटेल्स है सर उसके. कुछ डिटेल्स है. Very correct. कुछ डिटेल्स है. यानी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसके कुछ यहाँ देखा आपने कीज थे, ये ऐसा कीबोर्ड के जैसा. इसमें देखा आपने यार इसका कैप था, इसके पीछे रबर था, इसका इंक का कुछ दिखाई दे रहा था, इसके ऑपरेशन से इससे आप लिख रहे थे और इसमें से टाइप कर रहा था. सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स दैट यू हैव सीन. लिसन टू वेरी केयरफुली, नोट करके रखो. एवरी टाइप has some characteristic properties, has some characteristic behavior, and it is differentiable. I can differentiate a keyboard from a pen. I can differentiate a pen from a glass of water. I can differentiate it with my mic that I have over here, with my mic that I have. Oh, sorry, move नहीं करना चाहिए था. Am I audible? Yes, sir. Yes. Oh, गलती से मैंने mic को हटाया. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अरे yes, understood. Okay, what I'm sitting back is on a chair. So that has a different structure. It has a different behavior. It has a different purpose. So what is an object? Anything that is identifiable is an object. Anything which has a well-defined role to play is an object. इसका एक well-defined role है. क्या लिखना है? ये कीबोर्ड जो दिखा है इसका भी एक well-defined role है. टाइप करना है. It is identifiable. It is differentiable. दो पेन है मेरे पास, तो भी मैं एक पेन को दूसरे पेन से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ. ये ब्लू कलर पेन है तो ग्रीन कलर पेन है. I can differentiate. ये identifiable है. Everything that is identifiable is unique. दो डुप्लीकेट पेन नहीं होते. आप कहोगे सर होते हैं ना सर, मेरे पास दो पेन है एक जैसे ही है. Likewise, I have over here two pens. तो कहोगे सर ये दोनों पेन एक जैसे ही है. अरे ना, ये भले ही रेड पेन हो, इसका सीरियल नंबर अलग है, इसका अलग है, या शायद इसकी कंपनी अलग है, इसकी कंपनी अलग है. So they are identifiable. There is no such concept as duplicate things. Every object is unique. अगर वो यूनिक नहीं है फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, सो इन पाइथन जो कुछ भी रहेगा आपका सामने, जो भी डेटा रहेगा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा. हर एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइबल होगा. एंड हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट आई शो यू. एवरी ऑब्जेक्ट विल बी आइडेंटिफाइबल. आप डिफरेंशिएट कर पाओगे इस टाइप के ऑब्जेक्ट को दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट पे बेस्ड ऑन व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म. जैसे कीबोर्ड पे मैं लिख नहीं सकता हूं, मैं टाइप कर सकता हूं. पेन से मैं टाइप नहीं कर सकूंगा, पेन से मैं लिख पाऊंगा. तो एवरी ऑब्जेक्ट पे आप कोई एक ऑपरेशन कर पाओगे. सम ऑपरेशंस आर अलाउड, सम ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड. Python, these objects can be built-in objects, जैसे provided by Python, or objects from extension library or created by the application program. So three categories of object रहेंगे. एक है built-in जो Python ही supply करेगा. That is आज का topic for discussion. यार next few 4 sessions. Built-in objects. Second are from extension libraries. यानी Python में there are number of libraries which will give you some objects which has the specialized behavior. कल जाके आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, उसे मालूम है इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करना है, तो एक्सटेंशन लाइब्रेरी से मैं लूंगा और उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मैं इंटरनेट से कनेक्ट करूंगा. सो दैट्स अ एक्सटेंशन लाइब्रेरी जो पाइथन में बिल्ट इन नहीं रहेगा, बट आई मे टेक इट फ्रॉम अ लाइब्रेरी. थर्ड, समझो ऐसा कोई पाइथन के लाइब्रेरी में ना ही इन दैट पी इंडेक्स आपका जो प्रॉब्लम है उसे एड्रेस करने वाला कोई रेडीमेड सोल्यूशन है ही नहीं. एंड दैट कैन हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम. तो इन दैट केस यू आर बिल्डिंग योर ओन ऑब्जेक्ट, यानी आपने अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट विल कम अक्रॉस. एक, वन व्हिच इज बिल्ट इन प्रोवाइडेड बाय पाइथन. सेकंड, जो आपको लाइब्रेरी से मिलेगा. एंड थर्ड, व्हिच यू एंड मी विल बी क्रिएटिंग. यू एंड मी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स विल बी द लास्ट टॉपिक इन आवर कोर्स, जहां हम लोग खुद ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे. पहला जितने रेडीमेड है उतने तो डिस्कस कर ले, बिकॉज वहीं से अपना ज्यादातर काम बन जाएगा. बट देन ज्यादातर बनेगा, पूरा काम नहीं होगा. तो टू कंप्लीट दिस प्रोसेस वी शुड आल्सो लर्न हाउ टू क्रिएट आवर ओन ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन. So there are different kinds of objects for different data types. So every data type is of a different type. जैसे आपने कहा सर ये पेन है, यानी इसका टाइप पेन है. फिर आपने कहा ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड के टाइप का एक ऑब्जेक्ट है. तो कीबोर्ड एक टाइप है.
पेन एक टाइप है और ये उस टाइप की एक चीज है, ये पेन टाइप की चीज है, ये कीबोर्ड टाइप की चीज है. Likewise, I'll be telling you what are the different types in Python, and then we'll create variables of that type and use that type based on what operations do they support. क्वेश्चन आए, डाउट आए तो इमीडिएटली अनम्यूट करके पूछना है, बाद में नहीं. आई डू नॉट लाइक आस्किंग क्वेश्चंस लेटर. बेस्ट टाइम टू आस्क द क्वेश्चन इज जब मन में डाउट आ जाए. ईच वैल्यू इन पाइथन प्रोग्राम इज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप. जैसे मैंने कहा, एक कोई नंबर लिया 7, दैट्स ऑफ इंटीजर टाइप. ऐसे 7.5, दैट्स ऑफ रियल नंबर, दैट्स ऑफ फ्लोटिंग टाइप. मैंने कहा 4+3j या i जो आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप है. अब मैंने कहा आकाश थोड़ी देर पहले, वो स्ट्रिंग टाइप के. यानी एवरी वैल्यू दैट यू मे कम अक्रॉस इज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप. ऐसा होगा ही नहीं देयर इज सम डेटा और उसका कोई टाइप नहीं है. एवरी डेटा विल बी ऑफ सम टाइप, एवरी ऑब्जेक्ट विल बी ऑफ सम टाइप. So every value will be of some type. Every value will be of some type. Data types of a value determines how the data is represented in the computer and what operations can be performed on the data. तो अगर आपको पता चला कि ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, अगर आपको पता है तो आपको मालूम है इस कीबोर्ड से मैं राइट नहीं कर सकता हूं, मैं टाइप कर सकता हूं. पेन है तो उसमें राइट कर सकता हूं, आई कैन नॉट यूज इट फॉर सम अदर पर्पस. तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन पर्पस. वी नो कि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, यही डिसाइड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप क्या ऑपरेशंस कर पाओगे. तो टू पुट इन सिंपल वर्ड्स, आई एम स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक्स. दोज हु ऑलरेडी हैव सम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, शायद आपको लगेगा यार ये तो मालूम है मुझे, फिर भी सुनिएगा, बिकॉज देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट अबाउट इट दैट यू मे नॉट बी नोइंग. एंड दोज हु आर फ्रेशर, उनके लिए तो जरूरी ही है. I know some of you are already having programming background, but you'll have some surprises in store. How Python is different then probably आपने अगर C, C++, Java पढ़ा है, उससे भी Python कुछ अलग है. तो there are going to be surprises for you. तो although there may be some basic stuff that I'm discussing, make sure listen to me completely because you'll always have something to carry home in every session. कुछ तो खास मिल जाएगा. जो रोज कुछ नया पढ़ते हैं वो नोट करके रखना है. हाँ, आज मला हे महत्वाचं कळालं. I'll make a note of it. Okay. So data types of a value determine how the data is represented in the computer. So if you are under impression कि मैंने आपका फोटो लिया, करेक्ट, या मैंने आपकी आवाज रिकॉर्ड कर ली, तो इफ यू आर अंडर इंप्रेशन कि फोटो और आवाज एक तरीके से स्टोर होने वाली है, तो यू आर मिस्टेकन. The way the photo will be stored will be very different than the way your audio will be stored, will be very different than the way your name will be stored. Every data is represented in a different format onto your computer. So if I have a number integer, the way the integer is represented and where real number is represented and where the complex value is represented, that's going to be different. So data type की जानकारी अगर आपको है तो आपको ये पता चलेगा कि डेटा कंप्यूटर के मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा. How will it be stored inside the memory? How much memory will you occupy? Now when I use the word memory, आपको तो मालूम रहेगा आपकी मशीन में 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, 8 GB रैम है. You may be talking about it. मेरे पास 1 TB की हार्ड डिस्क है. That means you have that many number of bytes that are there. Bit is the smallest unit of measurement of memory. 8 bits makes 1 byte. And जब आप कहते हो 1 bits 1 byte and then 1000 bits MB and GB and TB and pentabyte and so on, ये आपके units of measurement है. तो आप कहते हो मेरे पास फलाना फलाना amount की memory है. That means you have that many number of bytes of memory. When I say I have 3 GB RAM, that means I have 3 GB bytes of memory. 3 GB bytes of memory. तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी ऑल्दो बिट्स रहेगा, हम उसे 8 बिट्स का एक 4 बिट्स को निबल कहेंगे, 8 बिट्स को बाइट्स कहेंगे, तो हम लोग बाइट के टर्म्स में बात करेंगे. तो पाइथन में व्हेन यू टॉक अबाउट एनी डेटा दैट इज बीइंग यूज्ड, एवरी डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विल ऑक्यूपाई सम मेमोरी. कितने बाइट्स मेमोरी एलोकेट यूज करेगा वो डिपेंड करेगा उस टाइप का डेटा का टाइप क्या है, द टाइप क्या है और वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा उसके लिए कितनी मेमोरी उसने यूटिलाइज की है. सो डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू डिटरमाइंस how the data is represented in the computer and what operations can be performed on that. तो अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ये ऑपरेशन उस टाइप के, जैसे मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ आकाश, इलीगल ऑपरेशन है. स्ट्रिंग पे आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं, बट रियल नंबर पे, फ्लोट नंबर, इंटीजर होल नंबर का स्क्वायर रूट आप ले सकते हो. तो इट विल आल्सो टेल यू कि ये डेटा टाइप का, ये डेटा का ये टाइप है. इफ डेटा इज ऑफ अ सर्टेन टाइप, which operations are allowed and which operations are not allowed to be performed. A data type provided by the language itself is called as primitive type. Our initial discussion is going to be primitive, जो Python ही provide करेगा हमें. उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, it's inbuilt in Python. So I said built-in types, they are called as primitive type. आगे जाके लास्ट में देखेंगे हम लोग user defined type जो हम create करेंगे. Python supports quite a few data types: numbers, text, strings, files, containers, and the story is long. Python is becoming popular because it has a fantastic support
फॉर लॉट मेनी डिफरेंट टाइप्स. एज अ सी प्रोग्रामर, जावा प्रोग्रामर बहुत काम करना पड़ता है. पाइथन में बहुत कुछ टाइप्स रेडीमेड ही मिल जाएंगे. एंड आई डिस्कस ईच टाइप दैट इज देयर, हर एक टाइप. तो ये जो इनिशियल टॉपिक है, पहला टॉपिक है, जरा लंबा है. ओके अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ स्लाइड्स की बात करूं, दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल बी कंप्राइजिंग ऑफ हाउ मेनी स्लाइड्स, 145 स्लाइड्स. ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रेजेंटेशन आपके कोर्स में रहेगा. क्यों ऐसा है? बिकॉज उतने ज्यादा टाइप्स है पाइथन में. एंड कई जगह के इंस्टीट्यूट का तो कोर्स ही खत्म हो जाता है विद दिस टॉपिक. उनको लगता है इतना ही है पाइथन में, बट पाइथन इज अ बिग स्टोरी एंड विल डिस्कस एवरीथिंग हियर. The principal built-in types are numeric types, sequence types, mapping types, class types, instance types, exception types, and we plan to cover up all the types. But we are going to start with the built-in types and the basic one that are numeric. So in the initial session, I told you we can use Python as a calculator, and I gave you a demonstration. जब आप Python start करते हैं, उसे हम लोग जब Python shell करते हैं, कहते हैं that Python shell is it's an interpreter which will interpret every instruction that you do, right, and you're going to get your result immediately. So you can think about a Python shell. Shell मतलब या command prompt जहां आप Python के commands type कर पाओगे. तो interpreter acts as a simple calculator and you can perform all the basic operations over there itself. You can type an expression, it will write you the value. तो आप basic operation जो भी है आपके प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो भी आपने मैथ्स में या फिर जो भी आपने किसी दूसरे लैंग्वेज में पढ़ा रहेगा, all those operations you can carry out over here itself. जैसे मैंने यहाँ कहा 2 + 2, I got answer as 4. मैंने कहा 2 + 2 in bracket, I also still got answer as 4 and so on. So you can use Python as the shell as as a calculator itself. Okay, and then there are some interesting operations that are available, and I'm going to show you those interesting operations before we go ahead with the next topic, that is variables. So we are now supposed to go ahead with variables, but before we go ahead with variables, let's work with different types. So I'll just show you how do I start off with Python and what are the various operations that we can perform. I started with my command prompt. Windows का shell है, या आपने विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट किया, cmd टाइप करके स्टार्ट करो, या फिर आपकी मशीन में टर्मिनल इंस्टॉल्ड है तो उस पे जाइएगा. ओके, इज द टर्मिनल विजिबल एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. ये डायरेक्टली Yes, कर sir. सकते हैं या Yes, फिर sir. आप यहाँ जाके cmd टाइप कर सकते हैं और वहां से स्टार्ट किया तो भी चलेगा. ये कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट किया तो भी चलेगा. इसका फॉन्ट थोड़ा कम था, मैं बढ़ा सकता हूँ, इससे भी कर सकते हैं. आई लव टू यूज टर्मिनल, तो मैं यहाँ हूँ. यू कैन बी इन एनी लोकेशन. और यहाँ मैंने टाइप किया, विंडोज में हूँ तो मैं टाइप करूंगा एज पाइथन, लिनक्स में हूँ तो मैं टाइप करूंगा पाइथन 3, and currently I'm working with Python 3.9. Doesn't matter for the initial topic. ये जो 3 लाइन दिख, 3 ग्रेटर देन साइन देख रहे हैं, that's my Python prompt जहां मैं Python का कोई भी कमांड टाइप कर सकता हूं. तो we talked about some basic operation. I say 9 - 3, I got as answer as 6. Okay, then I say 67 plus 5, I got answer as so and so. Oh, I say 67 plus 5 into 10. अभी 67 plus 5 का आंसर 72 था. 72 to into 10 क्या आएगा? 720. ऐसा नहीं होगा. मैथ्स भूल गए क्या? बोर्ड मैथ्स रूल, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा एंड देन एडिशन होगा. सो ऑल दोस रूल्स आर आल्सो टेकन केयर ऑफ. यू विल गेट आंसर एज 117 बिकॉज द वे इट हैज बीन इवैल्यूएटेड इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज द वन दैट हैज बीन कैरिड आउट फर्स्ट, देन वी गॉट इट. इफ आई वांटेड टू चेंज द ऑर्डर इन व्हिच दे शुड गेट इवैल्यूएटेड, तो मुझे ब्रैकेट्स डालना होगा और ब्रैकेट से मैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज कर सकता हूँ. प्लस का जिसका प्रायोरिटी कम है उसे मैं पहले करूंगा. नाउ इट विल बी 67 plus 5 that is 72 and 72 to 10 will be 720 and so on. तो अगर आपको ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन यानी प्रेसिडेंस को चेंज करना है तो आपको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होगा. अदरवाइज ऑपरेटर्स हैव सम प्रेसिडेंस. प्रेसिडेंस मतलब सम ऑपरेटर्स लाइक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड will work before addition and subtraction, and there are a number of other operators. I'll tell you share with you the entire precedent chart as we go ahead, but ये याद रखना आपको. बट ये जो कंसोल था, ये अगर ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कुछ और भी कर सकते थे. आप पाइथन अगर इंस्टॉल किया आपने तो आप आईडीएलई टाइप करोगे. आईडीएलई टाइप करने के बाद आपको एक पाइथन का इनबिल्ट आईडी मिलेगा जो कलरफुल रहेगा और कुछ नहीं. यानी यहाँ अगर मैं टाइप करता हूँ 6 into 4 तो ये 24 आंसर आया. थोड़ा सा कलरफुल है, नथिंग एल्स. And then if I say bracket of 6 plus 4 into 4 plus 5, तो ये जरा कलरफुल इसमें आंसर दिखाएगा. ये आपकी मर्जी है. आप इसका कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करना चाहते हो तो आप कॉन्फ़िगर आईडी में जाके यू कैन आल्सो प्ले अराउंड विद द कलर्स एंड एवरीथिंग. तो करंटली मैंने ये लिया है, डार्क रेड लिया है. अगर मैं क्लासिक व्यू लेता हूँ तो कुछ ऐसा आएगा. अगर मैं नया कोई स्टाइल लेता हूँ तो समझो मैं क्लासिक डार्क ये मैं लिया है. ये लेते हैं, दिस इज व्हाट वी क्लासिक लिया था. क्या मैंने अभी क्लासिक अगर लेता मैं तो ये अलग तरीके से कलर्स आएंगे. एंड लुक एट दैट 6 into 4 ये आंसर 24 एंड सो ऑन. दिस कैन हैव, बट हम लोग आइडियली में बाद में बात करेंगे. पहले यहाँ कंसोल पे ही काम करते हैं. देयर आर मल्टीपल वेज इन व्हिच यू कैन रन द प्रोग्राम. लेट्स लुक एट सम बेसिक ऑपरेटर्स.
if I now say 5 plus 5, answer is क्या हुआ? ये क्या था? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट. अरे ये 5 के पहले मैंने एक स्पेस डाला. पाइथन में ना इस स्पेसेस का बहुत मतलब है, तो स्पेस नहीं डालना है. तो मैंने कहा 5 एंड देन उसके बाद मैं स्पेस प्लस 5 लिखता हूँ. क्या था? ठीक है, 10. एडिशन इज अलाउड. If I said 5 into 4, answer is 20. If I said 5 divided by 4, कितना आंसर आएगा 5 divided by 4? फ्लोट में आएगा सर. आंसर क्या आएगा बताइए? 1.25. 1.25. तो you got answer as 1.25. Watch it, you got answer as 1.25. ये है आपका डिवीजन ऑपरेशन. But what is Python special for is providing integer division. अगर मैंने 2 बार स्लैश डाला तो will only give the integer part, the fraction part नहीं आएगा. That means if I had 22 divided by 7, I'll get value as 3.142793. what आपका पाई का वैल्यू मिल जाएगा. But at the same time अगर मैंने 22 divided by 7 कहा तो integer division है, only the quotient you will get, the rest of the fraction is something that you will not get. Keep that thing in mind. नोट करके रहिए, ये स्पेशल ऑपरेटर है which will not find in other languages. Likewise जब मैं 22 डिवाइड बाय 7 कहता हूं तो मुझे ये पूरा फ्रैक्शन आ रहा है. 2 बार इंटीजर डिवीजन किया तो ओनली द क्वेश्चन 3 आ रहा है. अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए था ये ऑपरेशन का, तो आई कैन से मॉड. व्हेन आई से मॉड आई गेट द रिमाइंडर, बिकॉज रिमाइंडर कैसे आएगा? 7 3 21, रिमाइंडर इज 1. तो उसी जगह पे अगर ये 25 होता तो व्हाट इज द आंसर इट विल गिव मी? 4 is the answer that you'll get. Okay, so these are basic operators that you're using. What we use is arithmetic operators. I would appreciate अगर आप unmute करोगे. What is factorial of 100? Yes, देसले का क्वेश्चन है. Factorial of 100 क्या है? अब वो तो बहुत बड़ा नंबर है. ओके, अब वो नंबर अगर कैलकुलेट करना है तो पाइथन में लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना होगा. यहाँ मैं कोड नहीं लिखूंगा. तो इसका क्वेश्चन तो मैं आंसर कर देता हूँ, बट दिस इज नॉट व्हाट यू आर गोना लर्न टुडे. तो ये अगर मैंने कहा इंपोर्ट मैथ, पाइथन में रेडीमेड सपोर्ट है, तो मैं कह सकता था मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ 100. ऑलमोस्ट ऑल रिक्वायरमेंट जो है ये आ गया फैक्टोरियल ऑफ 100. अगर पढ़ सकते हो नंबर यस तो मुझे पढ़ के दिखाओ, अदरवाइज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन. लुक एट दिस नंबर, अगर आप पढ़ पाओगे नंबर क्या है. ओके, दैट्स अ वेरी लार्ज नंबर दैट इज देयर. पॉइंट इज तर मला माहित होतं ते मोठं आहे त्याच्यामुळे ओके ओके कन्फर्म करत होतो. Okay, good. But then we are going to explore this concept later. Point is like Python में तो सबके लिए सपोर्ट अवेलेबल है. आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ है. बट आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स. तो मैंने कहा 22/7 एंड सो ऑन वी आर कैलकुलेटिंग. आप चाहे तो इससे भी बड़ा नंबर ले सकते थे 1000 एंड देखो इतना बड़ा आंसर. अभी कहाँ से कौन पढ़ेगा इस आंसर को, इतना बड़ा आंसर. Okay, that's a big value that we have. Okay, and that's the number. In Python, almost or for everything we'll have a support. For almost everything we'll have a support in Python, so you don't really have to worry. Okay, now we are carrying out some additional operations and we want to do something more. I say 8 into 2. Answer क्या आ गया? 16. But at the same time, if I say 8 star 2, यानी 8 to the power 2 बोलेगा 64. तो एक एडिशनल ऑपरेटर. मल्टीप्लाई तो हमें पता है, बट 2 बार स्टार डालोगे तो ये पावर कहेगा 8 रेज़ टू द पावर 2 और 8 टू द पावर 2 और 8 रेज़ टू 2 या व्हाट एवर यू मे से. तो इसका स्क्वायर दिया. अगर आपको क्यूब चाहिए था तो आप क्यूब ले लो. अगर आपको 4 टाइम्स 8 into 8 into 8 into 8 चाहिए तो इस दैट, तो पावर चाहिए तो 2 स्टार, मल्टीप्लाई करना है तो सिंगल स्टार. तो 2 नए ऑपरेटर्स कौन से देखे हमने? एक ऑपरेटर देखा डिवाइड, दैट इज 8 divided by 3 यू गेट, क्या हुआ? स्पेस डाला वापस गलती से, स्पेस नहीं चाहिए. 8 divided by 3 तो आपको आंसर ये आ गया. 8 divided by 3 क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइए. 3 2 Only the integer part, fraction part is gone. And 8 mod 3 क्या आएगा? 2. वेरी करेक्ट, 2 रिमाइंडर आएगा. यानी 3 2s are 6, रिमाइंडर कितना है तो 2 काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो दैट्स हाउ इट रियली वर्क्स. और इसका आंसर बताइए. Zero. 0. Okay, 3 3s are 9, रिमाइंडर इज 0. तो हमने मॉड 1 देखा, इंटीजर डिवीजन देखा, और हाउ सिंपल इट इज. अब ये कोई भी बच्चा कर सकता है, स्कूल में भी है तो भी कर सकते हैं आप, बट दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट. ओके, these are basic operators that Python provides. Is that all? No, we are going to cover up all of them, but let's have a basic idea first. So we had looked at, yes please. हेलो हाँ बोलिए. सर, डबल डिवीजन ऑपरेटर को क्या कहते हैं? पर हाँ इस ऑपरेटर को हाँ काय पाहिजे? क्या कहते हैं? इंटीजर डिवीजन. इंटीजर डिवीजन. इंटीजर डिवीजन, बिकॉज वो रियल नंबर नहीं देता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं देता है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं देता है, इसे इंटीजर डिवीजन कहेंगे. ठीक है.
Shall I go ahead? Okay, sir. Okay. Okay, there is another operator, integer division. Can you say to do integer division and get the integer result, discarding any of the fractional result, use operator slash slash. ये slash slash से करो तो integer division आ जाएगा. The next point that we are trying to discuss is like, oh, और एक चीज रहेगी. While you're doing this, if I say first value into second value, what's the answer that we got? Yeah, first value plus second value, what is the result that we'll get? Third value. Pardon? Third value. Third value. Third value क्या रहेगा? अगर स्टार डालूंगा दोनों के बीच में तो Result. स्टार डालूंगा तो Multiplication. प्रोडक्ट. मैंने अगर कहा आपसे a into b, इसका आंसर क्या रहेगा? AB. ए बी नहीं रहेगा ना. ओके, दीज आर वेरिएबल्स. ये तो एरर देगा, बोलेगा ए क्या है मुझे मालूम नहीं है. यू कैन मल्टीप्लाई वैल्यूज. तो अगर 8 into 5 कहता तो आंसर ठीक है. बट अगर मैंने कहा यश into his surname is देसले, if I do, it's an error. मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर सकते आप. ये ऐसा थोड़ी ना ऑपरेशन अलाउड है. यू कैन नॉट परफॉर्म ऑपरेशन. तो व्हाट वी सेड, every value has a type. Listen to me, yeah? Every value has a type, and the type determines what operations are legal and what is not legal. Means I could say 6 into 5, that is allowed, but I am not allowed to say yes into this way. That's not allowed. ये क्या कहता है? Can't multiply sequence of non-integer type string. यानी ये जो डेटा है और ये जो डेटा है सबका टाइप है. At any point of time you want to know इस डेटा का टाइप क्या है. Watch it. You just have to say type. Python is very simple. Type of 9. 9 कौन से टाइप का वैल्यू है? क्या कह रहा है? 9 कौन से टाइप का वैल्यू है? इंटीजर है. Int. एंड देन मुझे देखना था ये यश जो था ये क्या है बाबा, ये क्या भानगड़ है, क्या है यश? यश इज ऑफ टाइप String. है. Likewise, थोड़ी देर पहले मैंने और एक वैल्यू लिया था जहां हमने कहा था 22 divided by 7. इसका आंसर कुछ तो आया था 3 point something something something. 3.40. 14 नहीं आया था, बड़ा सा रिजल्ट आया था. ओके, फिर उसका टाइप क्या है देखना था. हाँ, देखते हैं. इसका आंसर तो बहुत बड़ा नंबर था कुछ तो. करेक्ट. फिर इसका टाइप चेक करना था हमें. तो इसका टाइप क्या है? तो लेट्स सी इसका टाइप क्या है. 20 divided by 7. ये क्या था? इसका टाइप फ्लोट है. इसका टाइप फ्लोट है. दैट मींस एवरी वैल्यू हैज अ टाइप. अगर मैं ऐसे भी लिखता ना 2.7, ये भी कह रहा है फ्लोट है. तो एवरी डेटा हैज अ टाइप. और हमने देखा इंटीजर टाइप देखा, हमने स्ट्रिंग टाइप देखा, हमने फ्लोट टाइप देखा. वी सॉ देयर आर एवरी वैल्यू हैज अ टाइप. Every value has a type, and the type is determining what operation can be performed. While I could not multiply yes into this way, I could multiply 6 into 5. Yes or no? While I could not multiply yes into this way, I could multiply 6 into 5 because multiplication operation operates on integers, not on strings. तो type हमें बताता है कि कौन से operations legal है और कौन से operations illegal है. Type हमें और भी कुछ बताता है कि मेमोरी में कौन सी वैल्यू मेमोरी में कितना बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा. But I'll show you those things later how to check, because उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है पाइथन में रेडीमेड called as sys. और sys को पूछ सकते हैं मुझे बताओ इसने कितनी मेमोरी खाई है, and we can get to see that memory as well. But वो थोड़ा बाद में sys वगैरह कैसे यूज करना है. But किसी भी चीज का टाइप आइडेंटिफाई करना है तो क्या करना है? Type of function. टाइप फंक्शन को कॉल करना है. तो टाइप इज अ फंक्शन. टाइप इज अ फंक्शन. तो मैं अगर हेल्प कहता हूं और हेल्प कहने के बाद मैंने कहा टाइप, तो कहता है टाइप क्या है? टाइप इज अ फंक्शन. ओके, टाइप इज अ फंक्शन. ये इसमें कुछ भी पास कीजिएगा उसका वो टाइप बताएगा. ये मत पढ़ो अभी, ये ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा हमारे लिए. बट टाइप इज अ फंक्शन. इट्स अ फंक्शन. ओके, एंड वी कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइप. टाइप इज अ फंक्शन. इट्स अ फंक्शन. तो ये फंक्शन है और ये आपको किसी भी डेटा का टाइप बताएगा. एंड टाइप जानने का फायदा क्या है? हमें 3 चीजें पता चलेगी. पहला, वो मेमोरी में कैसे स्टोर है. दूसरा, उस पर क्या आप ऑपरेशंस कर सकते हो. ओके, एटलीस्ट 2 थिंग्स. एंड तीसरा, हाउ मच मेमोरी इज ऑक्युपाइंग. मेमोरी में कैसे स्टोर्ड है, हाउ मच मेमोरी इज ऑक्युपाइंग, और उस पर आप क्या ऑपरेशन कर सकते हो. ये 3 चीजें पता चलेंगे हमें जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग द टाइप. तो हमने अलग अलग टाइप का डेटा देखा, अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस देखे. बट देन इन एवरी लैंग्वेज ये हर बार थोड़ी ना मुझे चाहिए था एक प्रोग्राम लिखना है. और मैथ्स में भी आप करते हो, आप वेरिएबल्स बनाते हो और फिर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके उसमें वैल्यू स्टोर करते हो और वेरिएबल्स का प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे. हर बार थोड़ी ना मैं वैल्यूज ही यूज लूंगा. मैं वैल्यूज को वेरिएबल्स में स्टोर करूंगा और तब यूज करूंगा. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेरिएबल. एनीबॉडी हैज एन आइडिया व्हाट इज अ वेरिएबल? Stores value. Variables are those whose value can be changed. Okay, variables are something whose value can be changed. Who is that? Yash Shete.
Yes, Shete has answered it correctly. He says variables are something whose value can be changed. Okay, somebody would like to say something more? Container which holds value. Container which holds value. Very good. Anybody else? Which allocate memory for a हाँ, value. to store the value. यानी वो कंटेनर, उसके लिए कोई तो मेमोरी एलोकेट हुई और फिर उसके अंदर आप जाके वैल्यू स्टोर करोगे. परफेक्ट. और temporary allocation of memory. टेम्पररी एलोकेशन में, दैट्स आल्सो करेक्ट. दे आर वोलेटाइल. वो परमानेंट नहीं है. प्रोग्राम खत्म होने पर वो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं. दे आर वोलेटाइल. इसे इसका वर्ड है वोलेटाइल. है वोलेटाइल मींस वो परमानेंट नहीं है कि आपने वेरिएबल क्रिएट किया और आपने मशीन शट डाउन किया तभी वो वेरिएबल जिंदा है मेरे. नहीं, दे आर वोलेटाइल. दे इन द रैम. प्रोग्राम खत्म, दे आर डिस्ट्रॉयड. दे आर वोलेटाइल. नोट करके रखो, दे आर वोलेटाइल. वही सही है. बट देन यश ने जो कहा पहले कि दे आर समथिंग हुज वैल्यू कैन चेंज, दैट्स अ वेरी कॉमन डेफिनेशन दैट इज गिवन. That is most of the time true. That's not always true. Variables are need not necessarily the case whose value can change. I can also create variables whose values cannot be changed. हम ऐसे भी वेरिएबल बना सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है. तो a variable that means whose value can change, ये जो दिमाग में कॉन्सेप्ट है ये पहले निकाल दीजिएगा. Variable is not something whose value can change or cannot change. You can have variables whose value can change. You can have variables whose value cannot change. सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, बिकॉज ये क्या होता है वेरिएबल. Variable means vary हो सकता है. That's not necessarily the case. I can have variables whose values don't change. I can create variables whose value can change. Most of the time you will be creating variables whose values can change, and a lot of times you will also create variables whose values will not change. दोनों टाइप के variables possible है. Okay, तो उसका nature है. हम दोनों टाइप के variables बना सकते हैं. तो ये दिमाग में से definition हटा दो, and that's true with all the languages. Variable is something whose value can change. Probably yes. Not always yes. Okay, so that's not how you'll define variables. Somebody said, most probably it was Rutuja. Rutuja थे ना? Who said that container है? Sir, Vandana. Vandana said it's a container. That's a very logical way of expressing it's a container. यानी नॉन कंप्यूटिंग पढ़ने के लिए सबसे अच्छा विजुअलाइजेशन क्या रहेगा? एक कंटेनर है जिसमें आप कुछ तो स्टोर कर रहे हो. ये सबसे अच्छा simplistic view of variable है, and that's true also. You can visualize it like a container जिसमें आपने कुछ तो डेटा स्टोर किया. बट पॉइंट किसी ने कहा वो कंटेनर कहीं तो स्टोर है, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करना है. ऑब्वियस है, अगर डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए मेमोरी चाहिए. बट लेट्स नाउ वी आर प्रोग्रामर्स. इट्स गुड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ इन अ वेरी सिंपल टर्म्स, बट एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो नो व्हाट द फैक्ट इज. तो व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल्स आर ओनली आइडेंटिफायर्स. Identifiers. What do you mean by identifier? Now, to help you understand them, identifiers are names given to identify something. They are just names given to identify something. Something is what? Something that is there in the program. What can you have in the program? आपके प्रोग्राम में क्या हो सकता है? क्या क्या चीजें आ सकती है? Anybody want to guess? इंटीजर फ्लोट कौन से टाइप का है सर वो? Okay, और किसी को गेस करना है? प्रोग्राम में क्या आ सकता है? प्रोग्राम के अंदर Data. डेटा आ सकता है. और क्या आ सकता है? कीवर्ड्स, इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं. लिसन ना, वेरी गुड. प्रोग्राम के अंदर दो चीजें आ सकती है, एक तो डेटा आ सकता है या फिर इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं. एक रूल याद करो, नोट करके रखो, अभी नोट्स में नहीं रहेगा. ओके, नोट करके रखना है. नोट क्या करना है? प्रोग्राम कंप्राइजेस ऑफ एटलीस्ट टू थिंग्स, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस के लिए फंक्शंस होते हैं, डेटा के लिए वेरिएबल्स होते हैं. ओके, व्हाट इट इज. यानी प्रोग्राम में कम से कम दो चीजें आती है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस. एक रूल याद रखो, फॉर योर मशीन टू ऑपरेट ऑन द डेटा हैज टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी. जब तक डेटा मेमोरी में नहीं जाएगा तब तक आपका प्रोसेसर उस पर ऑपरेट नहीं करेगा. फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, फॉर द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड दैट ऑल्सो हैज टू बी लोडेड इन द मेमोरी. Unless and until the instruction is not loaded in the memory, it will never get executed. यानी आपके पेन ड्राइव में प्रोग्राम है, गेम है, पेन ड्राइव से वो रन नहीं होता है. आप जब डबल क्लिक करते हो पेन ड्राइव से मेमोरी में लोड हो जाता है, फिर आपको पेन ड्राइव में मेमोरी नहीं है क्या? That's a secondary memory. Henceforth, when I use the word memory, I am meaning the primary memory, that is RAM. जब तक ये डेटा रैम में नहीं आएगा, प्राइमरी मेमोरी में नहीं आएगा, तब तक आपके मशीन का प्रोसेसर उस डेटा पे ऑपरेट नहीं करेगा. जब तक आपके इंस्ट्रक्शंस रैम में स्टोर नहीं होंगे तब तक प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो नोट क्या करना है? एनी डेटा दैट हैज टू बी ऑपरेटेड अपॉन हैज टू बी लोडेड इन द मेमोरी. एनी इंस्ट्रक्शन दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड आल्सो हैज टू बी लोडेड इन द मेमोरी. Unless and until the data is not stored in the memory, it cannot be operated upon. Unless and until the instruction is not loaded in the memory, it cannot be executed. अब पॉइंट क्या है? अगर मेमोरी में कहीं तो मेमोरी क्या, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ बाइट्स है. आपने कहा 2 GB रैम है, यानी 2 GB बाइट्स है आपके पास. सो डेटा स्टोर्ड समवेयर इन द मेमोरी.
इंस्ट्रक्शन स्टोर समवेयर मेमोरी। अगर आपको इस डेटा पे ऑपरेट करना है जो मेमोरी में कहीं तो स्टोर्ड है, अगर आपको पता ही नहीं है मेमोरी में कहां स्टोर्ड है, तो उसको आप ऑपरेट कैसे करोगे? देयर इज नो वे यू कैन ऑपरेट। तो वेरिएबल्स आर नेम गिवन टू द लोकेशन इन द मेमोरी वेयर द डेटा हैज बीन स्टोर्ड। तो मेमोरी में वो डेटा कहीं तो स्टोर्ड है, लिसन टू वेरी केयरफुली, मेमोरी में वो डेटा कहीं तो स्टोर्ड है, उस लोकेशन को दिया हुआ नाम इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर्स because they identify the location in the memory where the data has been stored. So if I have to show you pictorially what is a variable, you can visualize variable like a container, as Vandana has said. It's like a container. But when you talk about a memory, your memory means आपकी memory means computer memory है। इसके आगे अगर मैं your memory कहता हूँ तो आपकी memory नहीं है। अगर हम लोग RAM की बात करें तो RAM कुछ ऐसा है, ऐसा assume करते, visualize करते, वो एक series of bytes है, तो समझो ये series of bytes है, assume करते कि ये सारे series of bytes है। These are all various series of bytes that we have. These are all various series of bytes that we have. Assume करो ऐसे series of bytes है, और थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ये series of bytes है और ये एक एक बाइट है, ये ऐसे एक एक बाइट है। Let's assume this, ये ऐसे bytes है। Assume करो, ऐसा होता नहीं है, वो तो एक सीरीज है, ऐसे रेक्टेंगल में ये नहीं आएगा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, सिंगल है रहेगा। ये सीरीज ऑफ बाइट्स है। नाउ इफ दीस आर सीरीज ऑफ बाइट्स दैट यू हैव, आई होप यू कैन सी द व्हाइट बोर्ड दैट आई एम ड्राइंग राइट नाउ। Yes, sir. ओके, अगर ये सीरीज ऑफ बाइट्स है तो मैं कहूंगा ये मेरा पहला बाइट है, ये मेरा पहला बाइट है, ये मेरा दूसरा बाइट है, ये मेरा तीसरा बाइट है, बिकॉज एवरी बाइट विल हैव एन एड्रेस। समझो इसका एड्रेस नंबर 1 है, इसका एड्रेस नंबर 2 है, इसका एड्रेस नंबर 3 है, इसका एड्रेस नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है। लाइकवाइज द नेक्स्ट वन इज 7, 8, 9, 10 करते करते 2 GB तक आ गए। ओके, 2 GB तक आ गए। तो व्हाट वी हैव इज सीरीज ऑफ बाइट्स। So when you talk about your RAM is nothing but various series of bytes that we have. It is nothing but series of bytes that we have. And but every byte that is there is given a number. Every byte is identifiable. हर एक byte का एक number है, unique location है। तो इसके आगे कोई भी आपके सामने एक term use करता है address. Address क्या है? उस byte का RAM के अंदर का position. Means मुझे बताइए, ये जो byte दिखाई दे रहा है आपका, I'll just draw, identify. ये जो बाइट दिखाई दे रहा है, इस बाइट का रैम में पोजीशन कौन सा है, कौन से पोजीशन पे है स्टोर्ड? रो नंबर 5 एंड रो नंबर नहीं, एक ही रो, ऐसा समझो एक ही रो, नंबर एक लाइन में ही पकड़ो, रो नंबर कॉलम नंबर नहीं, 5 पे है। अज्यूम करो ए 1 2 3 4 5 है, तो मैं कहूंगा इसका एड्रेस नंबर 5 है। अगर मैं यहां रख देता हूं तो इसका पोजीशन क्या है? कॉलम 2 रोल नंबर नहीं, कॉलम रोल कॉलम नहीं, अज्यूम करो एक ही रो है ऐसी बड़ी सी। 2 ना, एक ही रो है। अरे एक ही रो मतलब ये सारे एक ही रो में है। 8, sir. 8 पोजीशन 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और वैसे मैं यहां रख दूं तो 12। ओके, दैट मींस दीज आर एड्रेसेस दैट यू हैव बीन आइडेंटिफाइंग। तो आपने एड्रेस आइडेंटिफाई किया। तो एवरी बाइट इन इट्स अ सीरीज। अब ये पिक्चर लंबा सा ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 2 डायमेंशन ड्रॉ किया, बट वो एक सीरीज ऑफ बाइट्स है। हर एक बाइट का एड्रेस जब कोई कहता है, एड्रेस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ दैट बाइट इन द मेमोरी। That's the position of the byte. ये एड्रेस नंबर 1 है, ये एड्रेस नंबर 2 है, ये एड्रेस नंबर 3 है, एड्रेस नंबर 4 है, 5 है, 6 है, लाइकवाइज ये 12 है, ये 18 है एंड सो ऑन। तो अब मेरे पास समझो 24 बाइट्स ऑफ मेमोरी अवेलेबल है। ये 24 बाइट्स की मेमोरी है मेरे पास। नाउ ये आपका डेटा कहीं तो यहाँ स्टोर्ड है। अब मुझे बताइए, अगर आपके पास 2 GB रैम रहेगा तो उसका अगर 1 GBth लोकेशन पे स्टोर करूंगा तो उसका एड्रेस कितना लंबा चौड़ा रहेगा? नंबर याद रखना मुश्किल है। यस और नो? Yes. Okay, numbers are always difficult. Vandana, who is your best friend? सर माया। माया। जरा माया का फोन नंबर बताइए वंदना। याद नहीं है। याद नहीं है। माया का नाम याद है? हाँ। Names are easy to remember, numbers are not easy to remember. Likewise, अगर मेमोरी में आपने कुछ डेटा स्टोर किया है, मैं बताता हूँ 1960s और 70s में क्या होता था, when we had to write a program, we had to specify the number in the memory byte एड्रेस, और फिर उस कहना पड़ता था इस एड्रेस पे जाइए। OXF एड्रेस नॉर्मली हेक्साडेसिमल में होते हैं, अभी तो मैं डेसिमल में बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 दे विल बी इन हेक्साडेसिमल। मुझे कहना होगा गो एट एड्रेस नंबर OXFFF एंड गेट द वैल्यू फ्रॉम दैट। अरे यार ये कौन याद रखेगा एड्रेस?
तो लाइफ बिकेम इजियर बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। जब से हमारे पास ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आया विच केम इन 1960s में आया, और 70s के बाद जितने सारे लैंग्वेजेस आए उसमें तो वेरिएबल्स ही यूज करते हैं हम लोग। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या, कैसे अपनी लाइफ आसान करेगा। माया का फोन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, माया का नाम मालूम है तो चलेगा। व्हाट आई एम गोना डू इज, ये जो डेटा है मेरा, इसके लिए मैंने मेमोरी एलोकेट किया, समझो 1 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट किया, इसे मैं नाम दूंगा माया। समझो माया का एड्रेस या फोन नंबर स्टोर करना है, तो मैंने उस लोकेशन को, एड्रेस नंबर 6 को नाम दिया माया। अब जब भी मुझे माया का नंबर चाहिए तो मुझे अब ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आई विल से माया, बिकॉज माया जहां मैं कहूंगा वहां मुझे क्या मिलने वाला है, तो ये जो नंबर था ये माया का फोन नंबर था, सपोज दिस वाज फोन नंबर ऑफ माया। तो जब मैं माया कहूंगा तो माया विल टेक मी टू एड्रेस नंबर 6 एंड वैल्यू एट एड्रेस नंबर 6 इज द वैल्यू दैट आई वांटेड। So what are variable names? They are identifiers. They identify the value which is stored at the location to which they refer to. So Maya currently is referring to address number 6. Maya is referring to address number 6. So Maya is a name given to address number 6. In the program, if I say Maya, I'm going to get the value of Maya, that is 555. But ऐसा हो सकता है मुझे किसी का आधार कार्ड नंबर स्टोर करना है, या फिर मुझे किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर स्टोर करना है। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। ये इतना छोटा नंबर तो 1 बाइट में शायद स्टोर हो गया, बट अगर बड़ा सा नंबर है तो 1 बाइट में वो काफी स्टोर नहीं होगा। तो समटाइम्स आई विल हैव टू एलोकेट मोर मेमोरीज। शायद मैंने 4 बाइट्स एलोकेट किए आपके वेरिएबल के लिए। अब मुझे बताइए इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है। अगर ये 4 बाइट्स में गया है तो इसका एड्रेस क्या है? 14 सर। 14 है। अरे कैसे 14 काउंट किया आपने? ये कहा 6 + 6 12 13 14, तो ये 15 उसका एड्रेस नहीं है क्या? यस सर। 16 है क्या? यस सर। 17 है क्या? यस सर। नो 14 ही है सर। आपने जो 14 कहा वही सही है। क्यों? बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग एड्रेस की बात करेंगे, इसके आगे जो भी ऑक्युपाई किया रहेगा वो क्या रहेगा। तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस, जब भी कोई आपको एड्रेस देता है वो सारे एड्रेस नहीं देगा, वो सिर्फ आपको स्टार्टिंग एड्रेस देगा। तो आपका जो आंसर था 14, दैट इज करेक्ट। ये 6 + 6 12 + 13 and 14, दैट्स अ स्टार्टिंग एड्रेस। द वेरिएबल मे बी हैविंग अ लार्ज वैल्यू एंड टू स्टोर दैट लार्ज वैल्यू यू हैव टू रिक्वायर मोर मेमोरी। शायद 4 बाइट्स की मेमोरी आपने यूटिलाइज की है, फिर भी एड्रेस बताएं, पूछेंगे कोई तो 4 एड्रेस नहीं देने, स्टार्टिंग एड्रेस देना है। तो एवरी वेरिएबल हैज एन एड्रेस। तो आपने इसे नाम दिया था इस वेरिएबल को, दूर कहीं था, इसको नाम दे दिया, समझो हमने मेरा आधार कार्ड नंबर, आधार। तो मैं कहूंगा आधार, सॉरी मैं कहूंगा आधार। आधार इज अ नेम गिवन टू एड्रेस नंबर 14. तो whenever in the program if I say Aadhaar, it will give me the value which is stored at that location and so on. तो what we have, this green box that we see are variables. कोई वेरिएबल छोटा हो सकता है, कोई वेरिएबल बड़ा हो सकता है, बट ये जो नेम है, वेरिएबल नेम, वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक नाम है। वो नाम क्या रेफर कर रहा है? इट इज रेफरिंग टू अ वैल्यू विच इज स्टोर्ड एट अ पर्टिकुलर एड्रेस। दैट मींस आधार इज अ नेम given to address number 14 और value which is stored starting from address number 14. अगर आपको ये value चाहिए which is stored starting from address number 14, आपको कहना है आधार, it will fetch you the value at that particular location. So variable name क्या है? तो identifier है। Likewise आपके प्रोग्राम में, एप्लीकेशन में इंस्ट्रक्शंस भी है। अरे फिर ये इंस्ट्रक्शंस भी तो कहीं तो स्टोर हो जाएंगे। तो कोई एक स्पेशल एरिया रहता है अपने मेमोरी में जहां इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। तो समझो दिस वाज एन एरिया वेयर इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। अगर इसे इंस्ट्रक्शंस यहाँ स्टोर्ड है तो इसको भी नाम दिया जाएगा। और जो आपने थोड़ी देर पहले कहा फंक्शन का नाम था टाइप, तो दिस कुड बी द नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द लोकेशन इन द मेमोरी वेयर द इंस्ट्रक्शंस हैव बीन स्टोर्ड। तो यहाँ डेटा स्टोर था, तो यहाँ भी डेटा नहीं रहेगा। अभी ये जो नेक्स्ट लोकेशन है, यहाँ कुछ तो पाइथन के इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, ये मशीन कोड रहेगा। तो जब भी आप टाइप कहते हो तो विल गो टू दिस लोकेशन, और इस लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो नेम था ये फंक्शन का नाम है, ये जो नेम था ये वेरिएबल का नाम है। इफ द नेम इन द मेमोरी रेफर्स टू द लोकेशन वेयर देयर इज डेटा, उसे कहेंगे वेरिएबल नेम। इफ द नेम इन द नेम रेफर्स टू द लोकेशन वेयर इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड, उसे कहेंगे फंक्शन। दैट मींस identifiers, both of them are identifier. This is Maya is identifying this location memory where some value is stored. Type is identifying this location memory where something is being stored. यानी दोनों के लिए जनरलाइज टर्म क्या रहेगा? तो दोनों के लिए सबसे आसान टर्म जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो है आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल नेम्स आर ओनली आइडेंटिफायर्स। They identify the location in the memory where something is stored. And what is the something? Either data is stored or instructions are stored. यानी मेमोरी में उस जगह पे क्या स्टोर है? या तो डेटा स्टोर है या फिर इंस्ट्रक्शन स्टोर है। और उस लोकेशन जहां ये डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसे दिया हुआ नाम इज अ वेरिएबल। हैव यू एवरीवन अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट ऑफ वेरिएबल? किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? अब वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं उस जगह की या ना चेंज कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी है।
एंड आई कैन क्रिएट वेरिएबल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टी. मैं ऐसा वेरिएबल बना सकता हूँ जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, और ऐसा वेरिएबल बना सकता हूँ जिसकी वैल्यू चेंज हो. समझो मुझे अनंत का एज चाहिए, एज तो हर दिन चेंज होने वाला है, तो मुझे ऐसा मॉडिफाइबल वेरिएबल चाहिए. अनंत का डेट ऑफ बर्थ, एवरी डे के अनंत का डेट ऑफ बर्थ चेंज होता है क्या? वो फिक्स्ड है, तो मैं उसे कांस्टेंट वेरिएबल बनाऊंगा. तो देयर कैन बी वेरिएबल व्हिच इज कांस्टेंट, देन कैन बी वेरिएबल व्हिच इज नॉन कांस्टेंट. तो नॉन कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल रहेगा जिसकी वैल्यू चेंज कर सकेंगे. कांस्टेंट वेरिएबल ऐसा रहेगा जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज ना कर सके. बट वेरिएबल मतलब क्या है? इट इज जस्ट अ नेम गिवन टू सम लोकेशन इन द मेमोरी वेयर समथिंग इज स्टोर्ड. तो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल क्या है? इट्स एन आइडेंटिफायर. कैसा आइडेंटिफायर? ऐसा आइडेंटिफायर जहां इंस्ट्रक्शन स्टोर नहीं है, वहां जहां डेटा स्टोर है. तो ऐसा आइडेंटिफायर इन द मेमोरी, ऐसा आइडेंटिफायर which refers to some location in the memory where some data is stored, that is variable. And if it refers to the location in the memory where instructions are stored, it's a function. Have you all understood this particular concept? Yes, no, टिक करना है. नहीं समझ में आया तो रेड नो कहना है. टिक समझ में आया तो क्लिक करना है. Repeat the last line what you said. The location, if the identifier identifies a location in the memory where data is stored, that identifier is called as a variable. If the identifier identifies the location in the memory where instructions are stored, it's a function. So function name and variable names, both of them are only identifiers. They identify some location in the memory, nothing more than that. तो variable क्या है? तो एक identifier है, वो identify कर रहा है memory की किसी location को जहां कुछ तो stored है. फीडबैक दो, yes no जल्दी से. एवरीबॉडी समझ में आया नहीं आया? एवरीबॉडी हैज टू गिव अ फीडबैक. कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. इतनी कंजूसी मत रखो फीडबैक देने में. नहीं आया तो नहीं कहो, हाँ आया तो टिक करो. यस समझ में आया, लाइक इट, गिव अ थम्स अप, बट गिव फीडबॅक. ऐसा नाही होना चाहिए हाँ तू तुझं बोल आम्ही बघतोय. दैट काइंड ऑफ द केस. यू हैव टू रिस्पॉन्ड. क्लासरूम में रहते हुए खड़ा ही कर देता, अरे यार क्लासरूम में कंट्रोल जरा कम है, बट देन मुझे रिस्पॉन्स चाहिए. लेटर इन द सेशन अगर मुझे दिखाई दिया कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसका ये मतलब कि आप वीडियो लगा के सो गए या रिकॉर्डिंग पे, आई विल पुट यू बैक इनटू वेटिंग रूम. सुन नहीं पाओगे. तो लेक्चर में रहना है तो अटेंटिव रहना है. नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछना है. नहीं समझ में आया तो घर जाके कुछ नहीं होने वाला है. नहीं समझ में आया तो पूछना है. आई एम द बेस्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट एटलीस्ट एज फार एज दिस लैंग्वेज गोस. बट इफ यू डोंट आस्क एंड इन्फॉर्म एन ओपिनियन, इसने समझाया मुझे समझ में नहीं आता, अरे नहीं समझ में आया तो पूछो ना. और पूछने के बाद अगर मैं एक्सप्लेन न कर पाया तो देन फॉर्म एन ओपिनियन. आई विल एक्सप्लेन द सेम थिंग इन 10 डिफरेंट वेज. उसमें क्या है? ओके, कंजूसी नहीं करनी फीडबैक देने में. अगली बार फीडबैक नहीं आया तो वेटिंग रूम में चले जाओगे. हियर यू गो. So variables identifiers, they are names given to identify something. Variable is a storage location in the computer program. It's just a memory location. तो अब हम देख भी सकते हैं लोकेशन, मैं दिखाऊंगा आपको. A variable has a name and holds a value. Holds a value means what? It is referring to the location where the value has been stored. And I will show you how to check it. अगर आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वेरिएबल आइडेंटिफायर कैसे बनाना चाहिए? तो जो नाम रहेगा उसमें कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं. आप आस्की वैल्यू ले सकते हैं, आप यूनिकोड वैल्यू ले सकते हैं. अब आस्की और यूनिकोड का मतलब क्या है, टेल यू एज वी गो इट. बट कोई भी लेटर्स ले सकते हैं, अंडरस्कोर ले सकते हैं, डिजिट्स नहीं ले सकते हैं. देयर आर सम रूल्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल वी क्रिएट अ वेरिएबल. ओके, तो वी हैव टाइम एंड आई विल जस्ट शो यू हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल. तो मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है फॉर सम ऑपरेशंस. तो हैव अ लुक एट द कोड दैट आई एम गोना राइट. And that will help you to understand how to create variables and how to use variables. And then we'll see some very interesting properties of variables. वो देख के आज का टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे. अब ध्यान से देखो, how do I create variables and what is interesting on Python, which probably आपको बाकी लैंग्वेजेस में नहीं मिलेगा फीचर. Can you all see the Python? Can you all see the console? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ वेरिएबल. आई वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन. मुझे मेरे रूम का एरिया फाइंड करना है. तो इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ योर रूम, देन आई नीड टू नो द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रूम दैट इज देयर. तो आई नाउ नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल. तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेंथ. मैंने कहा इस मेरे रूम का लेंथ है 24 फीट से. ओके, एक वेरिएबल क्रिएट किया है. तो लेंथ इज अ वेरिएबल. लेंथ में क्या स्टोर्ड है? लेंथ अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं. लेंथ में व्हाट स्टोर्ड, क्या व्हाट इज स्टोर्ड, जीटी स्पेलिंग जो भी रहेगा, इसमें वैल्यू 24 स्टोर्ड है. तो जब मैं लेंथ टाइप कर रहा हूं तो मुझे उसकी वैल्यू आ रही है. तो दिस इज एन आइडेंटिफायर. इट आइडेंटिफाइज द लोकेशन वेयर द वैल्यू 24 इज स्टोर्ड. तो 24 क्या है? नंबर नहीं. Address, memory address. No, 24 is not the memory address. Data. डेटा है, करेक्ट. डेटा है. 24 इज अ डेटा, वैल्यू है.
लेंथ क्या है? Value. लेंथ क्या है? Variable. Variable. मतलब वेरिएबल Address of Used as an identifier. location. आइडेंटिफायर है, इट्स एन आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफाई किसे कर रहा है? लेंथ को मतलब जो हमने डाटा उसमें फीड किया मेमोरी को। मेमोरी को, Address of एड्रेस को। अगर वो एड्रेस देखना था तो आप एड्रेस भी देख सकते हैं। ये एड्रेस है, यानी पिक्चर कैसा है, एक्चुअल पिक्चर, ये आपको कोई समझाएगा नहीं है। आधे लोगों को तो गलत ही मालूम ही नहीं होता है। और मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेनर्स की बात कर रहा हूँ, गलत सिखाते हैं। ओके, तो यहाँ सिनारियो कैसा भी, दिस इज द लोकेशन इन द मेमोरी। ओके, ये कौन सा लोकेशन है? ओके, ये जो आपका डेटा है, ये इस लोकेशन पे, ये जो आपका एड्रेस है, ये आपका यहाँ का एड्रेस है। ऐसा समझो, ये एड्रेस है जहाँ ये वैल्यू हैज बीन स्टोर्ड। तो इसके अंदर क्या स्टोर्ड है? इसके अंदर वैल्यू 24 है स्टोर्ड। तो यहाँ स्टोर्ड क्या है वैल्यू? तो 24। तो 24 इज स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल है इसका नाम क्या है? तो ये अभी मैं आपको ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। तो लेंथ इज अ वेरिएबल। लिसन, कॉम्प्लेक्स लगे तो चिंता नहीं करनी है, बट जो एक्चुअल फैक्ट्स है वो जानना जरूरी है। नहीं तो सर ऐसा क्यों, जैसा है मालूम होना चाहिए, जो ट्रू फैक्ट्स है वही शेयर होना चाहिए। तो लेंथ इज आइडेंटिफायर दैट आइडेंटिफाइज दिस लोकेशन, और इस लोकेशन पे वैल्यू क्या है? तो 24 है। तो जब मैं लेंथ कह रहा हूं तो इट इज फेचिंग मी द वैल्यू व्हिच इज स्टोर्ड एट दिस एड्रेस। तो एड्रेस कैसे लिया मैंने? बाय कॉलिंग फंक्शन आईडी। वैल्यू कैसे लिया? जब लेंथ कहूंगा इट विल फेच मी द वैल्यू एट दिस एड्रेस, इस एड्रेस पर की उसने मुझे वैल्यू दे दी। हैव एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो वी ओके एंड Sir. हाँ बोलो। पाइथन में पॉइंटर होता है क्या? मुझे नहीं मालूम पॉइंटर क्या होता है। आप अगर इतनी जल्दी लैंग्वेज कंपेयर करना शुरू करोगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। पॉइंटर क्या होता है आप बताइए पहले। वो एड्रेस बताता है ना सर। तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम तो कैसे चलेगा? ओके, अब देखो पाइथन में इसी टॉपिक में बताने वाला हूँ। अभी पिक्चर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में से निकालने वाला हूँ। पाइथन इज वेरी डिफरेंट। अभी जो बताया मैंने ये ट्रेडिशनल है। इज दिस द कंप्लीट स्टोरी? बिल्कुल नहीं। अगर आप इसी पे भरोसे हुए आपका ओपिनियन फॉर्म कर लिया है तो आप गलत है। पिक्चर अभी बाकी है, अभी बाकी स्टोरी अलग है। दिस इज नॉट द कंप्लीट स्टोरी एंड दिस इज नॉट माय फाइनल ओपिनियन। ओके, पूरी स्टोरी सुनिए तब पिक्चर पता चलेगा। अभी तो हम लोग बेसिक देख रहे हैं, बट दिस इज नॉट द होल स्टोरी, नॉट द कंप्लीट एंड द करेक्ट स्टोरी एज वेल। इसमें अभी मॉडिफिकेशन आएगा। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, देन मैंने रूम की विड्थ जानना है, तो मैंने कहा WIDTH, अरे विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ है रूम की 20 फीट, तो 24 की लेंथ है और 20 की विड्थ है। तो मुझे बताइए एरिया क्या है रूम का? अरे बोलो एरिया क्या है रूम का? लेंथ और विड्थ मैंने दे दिया आपको, एरिया क्या है रूम का? अरे 480. 480. मैं थोड़ी ना कैलकुलेट करूंगा, मैं लिखूंगा लेंथ इनटू विड्थ ब्रेथ जो भी लिखा रहेगा आपने, एंड देन आई गॉट आंसर एज 480। करेक्ट? तो मैंने वेरिएबल लिए एंड बाय यूजिंग दिस वेरिएबल इट बिकम्स मोर क्लियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। मैं रिजल्ट किसी में स्टोर करना चाहता एरिया में, तो मैं लिख सकता था एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, और जब मुझे एरिया चाहिए तो मैं एरिया टाइप करूंगा तो एरिया आ जाएगा। तो एरिया इज अ वेरिएबल व्हिच हैज स्टोर्ड द रिजल्ट ऑफ दैट अरिथमेटिक ऑपरेशन, लेंथ इनटू विड्थ का ऑपरेशन का रिजल्ट आपने एरिया में स्टोर किया, और आगे जाके आपको प्रोग्राम में एरिया यूज करना, तो एरिया कहिएगा, इट विल गिव द वैल्यू दैट इज 480 एंड सो ऑन। बट जो वेरिएबल नेम्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, अगर मैं ऐसा कोई एक नेम क्रिएट करता हूं 1 num इज इक्वल टू 56, कहता है एरर, ऐसा नाम नहीं चलेगा। ओ मैंने कहा num1 इज इक्वल टू 56 चलेगा। दैट मीन्स द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी डिजिट। डिजिट्स आ सकते हैं बट बाद में आ सकते हैं। फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी डिजिट। आई कैन ऑल्सो इंक्लूड अंडरस्कोर। मैं कह सकता हूं num_1 इज इक्वल टू 34, अलाउड है, और num_1 अलग है और num1 अलग है, बट अंडरस्कोर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। चलो फिर मैं दूसरा कोई सिंबल लेता हूं, मैं कहता हूं num $5, बोलता है नहीं डॉलर विल अलाउड नहीं है। तो इफ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ वेरिएबल नेम यू कैन ओनली यूज अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z, अपर केस स्मॉल केस दोनों भी है। मैंने लिखा मैक्स इज इक्वल टू 56, तो ये मैक्स का वैल्यू क्या है? 56। इसका मतलब ये मैक्स क्या है? बोलता है मैक्स मुझे मालूम नहीं है, ये अलग है कुछ, तो ये फंक्शन का नाम है, मैक्स आपका वेरिएबल था। तो अपर केस वेरिएबल एंड लोअर केस वेरिएबल नेम्स आर डिफरेंट। अगर आपने लिखा A इज इक्वल टू 56
और आपने लिखा a इज इक्वल टू 66, तो अपर केस a का वैल्यू 56 है और स्मॉल केस a वेरिएबल का 66 है. पाइथन में वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. अपर केस a इज डिफरेंट एंड स्मॉल केस a इज डिफरेंट. तो नोट क्या करना है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. वेरिएबल नेम्स कैनॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. नोट करो, वेरिएबल नेम्स कैनॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. यू कैनॉट हैव स्पेशल सिंबल्स. आप क्या यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स में, सिर्फ आप यूज कर सकते हो अल्फाबेट्स फ्रॉम स्मॉल केस टू स्मॉल z, अपर केस a टू अपर केस z, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, अपर केस z. और क्या आप यूज कर सकते हो, डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. और लास्ट चीज जो आप यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर. दीज आर द ओनली थिंग्स यूजिंग विच यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल. और उसमें भी एक रूल क्या है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट. अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, देखते हैं. अंडरस्कोर num इज इक्वल टू 56 अलाउड. तो num अंडरस्कोर चलेगा. दैट मींस योर वेरिएबल नेम हैज टू स्टार्ट विद अ डिजिट अल्फाबेट, और अंडरस्कोर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. नोट करके रखना है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. डॉलर भी नहीं, डॉलर हैश कुछ नहीं. ये देखो, इन्हीं का इस्तेमाल करके आप वेरिएबल नेम क्रिएट कर सकते हो. डॉलर है कि इसमें? नो सर. नो. क्या क्या यूज कर सकते हैं आप, लोअर केस अल्फाबेट्स, अपर केस अल्फाबेट्स, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर. बस इन्हीं का इस्तेमाल करके यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल. मोमेंट यू ट्राई एंड यूज डॉलर और एनी अदर सिंबल, इट विल जनरेट एन एरर. दीज आर द ओनली सिंबल्स दैट वी कैन यूज टू क्रिएट अ वेरिएबल. प्लस अ रूल, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अंडरस्कोर. मैं ऐसा भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकता हूं जहां मैंने लिखा मेरा एक वेरिएबल है कॉल्ड एज MOBILE मोबाइल नंबर इज इक्वल टू सम नंबर. नहीं चलेगा. स्पेस इज नॉट अलाउड. स्पेस इज नॉट अलाउड. आपको लिखना था तो मोबाइल अंडरस्कोर नंबर लिख दीजिएगा, मोबाइल स्पेस नंबर लिख दिया, ये चलेगा. स्पेस इज समथिंग विच इज नॉट अलाउड. अनदर रूल, एम्बेडेड स्पेसेस आर नॉट अलाउड. वेरिएबल नेम हैज टू बी अ सिंगल वर्ड. दो वर्ड को ज्वाइन करने का तरीका क्या है, अंडरस्कोर डालो, पढ़ने के लिए आसान है, या फिर लिखो मोबाइल NUMBR इज कॉल्ड एज कैमल केसिंग. पहला वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ताकि आप पढ़ सके नंबर, और फिर आपने नंबर दे दिया, दैट्स आल्सो ओके. ये स्नेक का कॉन्सेप्ट है केसिंग, और ये कैमल केसिंग. कैमल मतलब फर्स्ट वर्ड, एवरी सब्सिक्वेंट वर्ड का फर्स्ट लेटर हैज टू बी मेड कैपिटल. इस तरीके से आप वेरिएबल के नेम दे सकते हैं. तो वी सॉ सम कॉन्सेप्ट लाइक वेरिएबल नेम्स. हेलो यस प्लीज. सर, वो हम जब टाइप करते हैं ना, तो उसमें स्पेस क्यों छोड़ते हैं? मतलब अभी पहले आपने टाइप किया था तो मतलब वो आ जाता है, बाद में आपने इज इक्वल टू के बाद वो दूसरे बार टाइप किया ना, मतलब तो स्पेस नहीं छोड़ा था, तभी वो अलाउ कैसे किया वो? कहाँ बताओ. हाँ, ये अभी नीचे का ऊपर का देखिए आपने, इज इक्वल टू के दोनों साइड पे आपने स्पेस दिया है. उससे कोई मतलब नहीं है. स्टार्टिंग में स्पेस नहीं छोड़ते, बाद में कुछ भी करो. मतलब कैसे भी स्पेस दिया तो भी चलता है? कैसे भी चलेगा, बाद में, पहले नहीं. नॉट एट द बिगिनिंग. अगर मैंने देखो ऐसा किया, 3 स्पेस एंड x इज इक्वल टू 6, क्या दे रहा है? हाँ, एरर. और फिर मैंने लिखा, पहले स्पेस नहीं छोड़ा, और यहाँ कितने भी स्पेस छोड़ू कोई दिक्कत नहीं है. x का वैल्यू 6. ओके. इधर ओके. ओके सर. Okay. So we saw some basic concepts of variable. Okay. In Python, there are few more rules about variables that you should be aware of. अभी वेरिएबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एक वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है अबाउट वेरिएबल कि अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स है, गिव मी 5 minutes. बाय दिस टाइम वी स्टॉप. लेट्स फिनिश विद दिस टॉपिक. अगर आपके पास 5 वेरिएबल्स है A B C, और सब में आपको वैल्यू 10 स्टोर करनी है, तो दो तरीके आपके पास. आप कह सकते हैं A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20 एंड C इज इक्वल टू 30. तो आपने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए. A का वैल्यू 10 है, B का वैल्यू 20 है, C का वैल्यू 30 है. बट सब में एक ही वैल्यू स्टोर करनी थी 50. तो ये 3 लाइन लिखने की जरूरत नहीं. यू कैन से A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 50. तो पहले क्या होगा, 50 विल गेट स्टोर इनटू C, देन C का वैल्यू 50 विल गेट स्टोर इनटू B, एंड देन B का वैल्यू 50 विल गेट स्टोर इनटू A. All the 3 variables will end up having same value. Can you see that? All of them are having same value. तो you can initialize more than one variables on one line, और फिर आप वेरिएबल्स की वैल्यू देख सकते हो. वन वेरी इंटरेस्टिंग फीचर जो आपको बाकी लैंग्वेजेस में नहीं दिखाई देगा, वॉच इट. अब मैंने एक कोई चीज खरीदी है मार्केट से, ओके. उस चीज की कॉस्ट इट कॉस्ट मी 560 रुपीज. तो मैंने कहा कॉस्ट इज इक्वल टू 560 रुपीज. उस पर एक टैक्स है, एंड टैक्स इज 10%. तो मुझे पे कितना करना होगा बताइए.
500. पढ़ 10% टैक्स है तो कितना पे करना होगा? 616. 616 पे करना होगा. कैसे कैलकुलेट किया आपने? कॉस्ट प्लस 10%. करेक्ट. कॉस्ट प्लस 10% टैक्स. 10% टैक्स मतलब कितना आया? 56. ओके, दैट मींस यू सेड कॉस्ट. आपने लॉजिक कैसे लेगा? कॉस्ट प्लस आपने कॉस्ट के ऊपर का 10%, बराबर है? जो अपने Yes. स्कूल में मैथ्स में लिखते रहे, ऐसा ही कुछ क्या? यस सर. ये तो गलत हो गया. डिवाइड बाय 100 करना रह गया. 10% ना आ गया. 10% था ना, परसेंट डिवाइड बाय 100. ओके, आगे 616 क्या है? टोटल अमाउंट. अमाउंट पेएबल. to be paid. अमाउंट पेएबल. यस और Yes, नो? अरे बट मैं तो स्टोर Yes. वेरिएबल में स्टोर करना भूल गया. तो आपको जो लास्ट आंसर है वो चाहिए रहेगा. पाइथन में एक स्पेशल कीज है, आप अगर अंडरस्कोर टाइप करोगे आपको लास्ट आंसर आएगा. तो मैं कह सकता हूं यहाँ अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू अंडरस्कोर. अंडरस्कोर मींस द लास्ट रिजल्ट. लास्ट रिजल्ट क्या है? 616. तो अमाउंट पेएबल में 616 आ चुका रहेगा. देखो तो आगे इसके अंदर 616. Yes, sir. ओके, तो अंडरस्कोर मींस व्हाट इन पाइथन? पाइथन में अंडरस्कोर का मतलब क्या है? Last amount. लास्ट रिजल्ट. ओके, लास्ट रिजल्ट. लास्ट रिजल्ट. ओके, अब मुझे बताइए इस वेरिएबल का टाइप क्या है? Integer. इंटीजर. इंटीजर. और इस वेरिएबल का टाइप क्या है? Float. फ्लोट. लिसन. अनलाइक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड देन विल स्टॉप. अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, अगर आपने सी में काम किया रहेगा तो वहां ऐसा करना पड़ता है. ऐसे इंट एक्स, तो ये जिंदगी भर इंटीजर है, इसमें इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं. या फिर आपने लिखा फ्लोट वाई, तो जिंदगी भर इसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसमें नाम नहीं आएगा, कुछ नहीं. इन पाइथन आपने नोट किया क्या? मैंने वेरिएबल क्रिएट ही नहीं किया, डायरेक्टली मैंने वैल्यू असाइन किया. इन पाइथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन वैल्यू टू इट. रूल क्या है? इन पाइथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन वैल्यूज टू इट. तो अगर मैंने कोई एक वेरिएबल क्रिएट किया है x इज इक्वल टू 5, तो टाइप ऑफ x चेक करोगे तो ये इंटीजर है. तो ये इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कब हुआ? जब मैंने इसके अंदर वैल्यू स्टोर किया. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, जब आपने वैल्यू 5 स्टोर की x में, देन वेरिएबल गॉट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली फॉर यू. पाइथन क्रिएट्स वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली फॉर यू व्हेन यू असाइन वैल्यू टू इट. असाइन मतलब उसमें कोई वैल्यू आप स्टोर करते हो, तो ये आपने वैल्यू 5 यू एंडेड अप स्टोरिंग इनटू x, वेरिएबल गॉट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. आपको बाकी लैंग्वेज के जैसा वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है पाइथन में. इट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. बट पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज. नोट करके रखो, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज. दैट मींस वेरिएबल का टाइप फिक्स नहीं है. मींस व्हाट? एक्स का टाइप क्या है फिलहाल? Integer. इंटीजर. नॉट नेसेसरी थ्रू आउट हिज लाइफ. अगर मैंने कहा था 7.9 और अगर मैं टाइप करता x, ये कहता फ्लोट बन गया. अरे मैंने कहा नहीं बाबा, ये दिस इज गौरव, तो x का टाइप क्या बन गया? देखो x बन गया स्ट्रिंग. दैट मींस पाइथन में वेरिएबल का नेचर कैन चेंज. अदर लैंग्वेजेस में आपको वेरिएबल पहले क्रिएट करना पड़ता है और जिंदगी में वो वेरिएबल उसी टाइप का होता है. पाइथन में जिस टाइप की वैल्यू आप डालोगे वेरिएबल उस टाइप का बन जाएगा. अगर आपने इंटीजर स्टोर किया ये इंटीजर बन गया, अगर आपने फ्लोट स्टोर किया ये फ्लोट बन गया, अगर आपने स्ट्रिंग स्टोर किया तो स्ट्रिंग बन गया. दैट मींस पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज. डायनेमिकली मींस द नेचर ऑफ दैट वेरिएबल चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू यू आर स्टोरिंग. आपने ये 5 स्टोर किया इसलिए x ऑफ टाइप इंटीजर, 7.9 स्टोर कर लिया इसलिए x ऑफ टाइप फ्लोट, गौरव स्टोर कर लिया इसके इसका टाइप क्या है तो स्ट्रिंग है. टाइप चेंजेस इन पाइथन. अगर मैंने यहां लिखा x इज इक्वल टू माई बेस्ट फ्रेंड्स, दिस इज माई फर्स्ट फ्रेंड एंड दिस इज माई अनदर फ्रेंड, दिस आर 2 ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैंने लिखा तो x क्या है? एक लिस्ट है. तो ये लिस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स है, तो ये बन गया लिस्ट है. तो पाइथन में you do not have to define the type of the variable. जिंदगी भर वो एक ही टाइप का नहीं होता है. The type changes based on what? Input. Input value. Value assigned. वैल्यू. इनपुट नहीं कहना, असाइंड. स्टोर करें. इनपुट का ही मतलब है बट स्टोर करें ना. आप इक्वल टू से कर रहे हैं तो इसके कहना है असाइनमेंट. ये जब भी इक्वल टू लिखते हो तो क्या है? असाइंड. डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द टाइप ऑफ वैल्यू दैट यू असाइन, द टाइप ऑफ द वेरिएबल चेंजेस इन पाइथन.
Okay, now this is the basic concept. How does it change is what I'll discuss next time. But ये basic concept of variable समझ में आ गया सबको? फिर जाता है एक चीज, something which is special in Python, huh? You'll love it. Suppose what is you can create variables in Python and they need not be in English, they can be in any language. Unicode में भी आ सकता है. जैसे मैं लिखूंगा माझं वय काय. Okay, अरे तो मैंने लिखा VAY, my वय is suppose 89 years. अरे you'll say क्या बात कर रहे सर, ये तो इंग्लिश में ही लिखा आपने, वय क्या है? अरे वय मराठी में तो मराठी में लिखो ना. तो I can very well do that. I can say माझं वय काय, वय is equal to I am 88 years old. Okay, and then I can print my वय and it is 88. That means it is not just A to Z, it can be characters from any language. आज मुझे रशियन आता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कुछ तो टाइप करूंगा. आई नो रशियन लैंग्वेज, तो रशियन लैंग्वेज में मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया. अब ये क्या है, गॉड नोस, आप में से किसी को रशियन आता रहेगा तो. एंड देन आई स्टोर्ड वैल्यू 78, तो ये वेरिएबल बन गया. अब ये टाइप करने के लिए मुझे मालूम नहीं कौन सा की प्रेस किया था. एनीवे, और एक क्रिएट करता, ये वेरिएबल है एंड आई स्टोर कमिंग बैक. अब अगर मैं एक वेरिएबल प्रिंट करता हूँ दोबारा, वैल्यू 99 आ गया. दैट मीन्स यू कैन क्रिएट वेरिएबल्स नेम्स by using characters from any language across. That's also possible in Python. हे फक्त व्हेरिएबल साठी आहे का पूर्ण प्रोग्रामिंग लँग्वेज साठी? लँग्वेज पूर्ण प्रोग्रामिंग लँग्वेज साठी. कीवर्ड्स आणि आयडेंटिफायर्स पण. कीवर्ड्स आर कीवर्ड, दे आर फिक्स्ड, उसको नहीं चेंज कर सकते. बाकी सारा टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. रिवाइज कीजिएगा और पाइथन इंस्टॉल करने के लिए जो नोट्स है आपको मेल आ जाएगा, डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल करके देखिएगा और ट्राई कीजिएगा. एंड देन किसी को दिक्कत है तो आई विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू डू इट इन इंस्टॉलेशन कैन बी डन. वो मैं एक बार चाहे तो डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा. बट आज कल आप एक मेरा मेल वेट कीजिएगा, उसमें इंस्ट्रक्शंस आएंगे, डाउनलोड कीजिएगा एंड स्टार्ट वर्किंग विद पाइथन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. लव यू ऑल. टेक केयर. गुड नाइट. बाय बाय.